Hello everyone, I hope you are all doing well. Myself Majla. Today we will start the class 12th political science part B book, that is Politics in India since Independence. That book's fourth chapter, that is India's external relations or India's foreign policy. Okay, this is part 1. Let's start. Now see, if you want to get the PDF of every video I upload, kindly go and search Manjula Ma'am official in Telegram channel. Now let's start with our discussion. Now see, in this chapter, we will discuss about India's foreign policy. That is, what kind of foreign policy India adopted after independence, on what principles, actually it is based on. And then we'll see, that policy of non-alignment, then India-China relation, that 1962 war, and then India-Pakistan relation, the war which took place between India and Pakistan in 1965. Okay, then around in 1947 itself, then 1999, 1971, that Bangladesh, liberation of Bangladesh, and then we'll discuss about India's nuclear policy, that is India's nuclear doctrine, right? So these will be the topics, main topics which I'm discussing, that all these will be covered in this chapter. So in this first part, our focus will be on what principles that India's foreign policy is actually based on, and then we will discuss about the policy of non-alignment and that Cold War time period, India's role at that time, in what position India actually stood in that particular time period. So these things we'll discuss in this first part. Let's start. Now see, इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था इन 1947, एट दैट टाइम उसके सामने बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स के बीच में उसका बर्थ हुआ था. ओके, नाउ लेट्स सी वो इंटरनेशनल इवेंट्स कौन कौन से थे. फर्स्ट थिंग इज दैट वर्ल्ड वॉर टू इम्पैक्ट. ओके, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू था. ओके, एंड इस वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उसका इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, ओके, एंड वहाँ यूरोप में पूरा बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था जहाँ पर, तो दे वर इन ए प्रोसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपने इकोनॉमी को रिकन्स्ट्रक्ट करना था. सो वो प्रोसेस चल रहा था. फाइन, जापान में, जर्मनी में, एंड देन एक न्यू ऐसा बॉडी को इस्टेब्लिश किया जा रहा था, दैट वाज इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशन. उस मेन एम इज टू प्रोटेक्ट the countries from doing war. That is basically international peace and security को maintain करना, and future wars like World War One, World War Two, ऐसे कोई World War Three ना हो उसको avoid करना. Basically peace and stability को world में maintain करना. So this body was actually established that time, 45 में establish किया था. And then that was the beginning of the Cold War era. Okay, that is after World War II, Cold War started between the two superpowers, USA and USSR, right? We discussed that in that contemporary world politics chapter number 1. Fine. And उसी टाइम पे एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का भी क्रिएशन हो रहा था. ओके, यूएसए डान दी न्यूक्लियर टेस्टिंग, फ्रांस ने भी किया, यूके ने भी ऑलरेडी किया हुआ था, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स उसने चाइना ने भी कर लिया था. ओके, सो एक ऐसा एक रेस चल रहा था कि ओके सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, उसको हमें क्रिएट करना चाहिए, एवरी कंट्री शुड हैव दैट, दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी वाज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम. एंड उसी टाइम पे चाइना जो है वो एमर्ज हुआ था, कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट चाइना एमर्ज इन 1949. फाइन, सो मैं इन सारे पॉइंट को मिक्स करके बता रही हूँ कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स क्या थे इन बिफोर इंडिया. एंड कम्युनिस्ट चाइना एमर्ज हुआ था 1949 में, and that was the beginning of end of colonization, or you can say beginning of decolonization. बेसिकली जो भी कंट्रीज किसी सुपर पावरफुल कंट्री के कंट्रोल में थे, एज अ कॉलोनीज थे, फॉर एग्जांपल इन सम कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, जैसे इंडिया ब्रिटेन के कंट्रोल था, ब्रिटेन का कॉलोनी था. ओके, सो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो थे वो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो रहे थे. फाइन, सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ decolonization process. And if we talk about India's internally क्या मैटर्स थे, दैट वाज बहुत ज़्यादा इंडिया में गरीबी थी, उसको रिमूव करना था, एजुकेशन को इम्प्रूव करना था, और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था, एंड पार्टीशन का नेगेटिव इम्पैक्ट हमने डिस्कस किया ही था. सो सीइंग ऑल दिस सिचुएशन इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जिस तरीके से एक पर्सन, ओके, लाइक किसी भी इंसान का क्या होता है, उसका बिहेवियर जो होता है उसके
उसका बिहेवियर चेंज होता है विद द इम्पैक्ट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. घर के अंदर उसके क्या एनवायरमेंट है, उसके लाइक हाउ ही बिहेव्स, दैट एक्चुअली पेरेंट्स कैसे हैं उनके, और वहाँ पर किस तरीके से हम घर का एनवायरनमेंट है, उससे भी उसका बिहेवियर का इम्पैक्ट होगा. एंड डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से भी, सोसाइटी में क्या लोग कैसे हैं, उससे भी उस पर्सन का बिहेवियर में इम्पैक्ट होता है. सेम वे किसी भी कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी जो होता है कि वो अपने रिलेशन को दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन रखेंगे, किसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा, व्हाट विल बी देयर आइडियोलॉजी, उनके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरनल मैटर्स है, दैट इज हमारे इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, दैट वन साइड. एंड उसके बाद एक्सटर्नली जो भी फैक्टर्स होते हैं, ओके, एक्सटर्नली व्हाट द सिचुएशन इज देयर, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, फाइन, इन सारी चीज़ों से, दैट इज बोथ internally and external, both internal and external factors shapes the foreign policy of a country. एक पर्टिकुलर कंट्री का फॉरेन पॉलिसी जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो इवेंट्स होते हैं, दैट एक्चुअली प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री. ओके, सो हमारे इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी को हमने एस्टैब्लिश किया था उसमें भी दोनों के इम्पैक्ट थे. Okay, so seeing all these things, ये जो भी events थे, India, what it decided to build the foreign policy, on what basis? India decided to connect its foreign relation with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through maintenance of peace. Okay, so India का foreign policy किस बेसिस पे डिसाइड हुआ, दैट वो जो इंडिया जो है अपना फॉरेन में जो भी रिलेशन कंट्रीज का रिलेशन मेंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज होंगे, दैट विल बी फोकस्ड ऑन रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस, कि हर कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, उस कंट्री की जो सुप्रीमेसी है, ओके, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे. इफ सम प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन इन चाइना इन इट्स पॉलिटिक्स, तो वी विल नॉट इंटरफेयर इन दैट. एंड ऑफ कोर्स चाइना विल ऑल्सो डोंट हैव टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया. ओके, तो दैट उस कंट्री की सॉवरेनिटी सुप्रीमेसी को रिस्पेक्ट करना, एंड देन सिक्योरिटी को अचीव करना बाय मेंटेनिंग peace. Okay, so that is the main aim of India's foreign policy even today. Fine. Now, और भी बहुत सारे इसमें like चीज़ों के ऊपर based है. Few of them are mentioned here, that India's foreign policy may like we focus on we are against the terrorism international level पे. जब भी कोई summits होते हैं, meetings होते हैं, even you take with meeting with ASEAN association के साथ अगर इंडिया का कोई मीटिंग होता है, और with SAARC countries, और with at the international level, United Nations as well, India focuses that terrorism के against हमें आवाज़ उठाना चाहिए, we should act on that. So कहीं ना कहीं हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में terrorism के against steps लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंडिया जो प्रमोट करता है, फाइन, that we should stop this terrorism from the world. And then India also focus on global disarmament, कि आर्म्स रेस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेपन्स का रेस करना, नो, इंडिया इज अगेंस्ट दैट आर्मामेंट, हमें डिसआर्म करना चाहिए. ओके, बेसिकली हमें वेपन्स का रेस नहीं करना चाहिए. ऑफकोर्स आज के टाइम में सारे कंट्रीज रखते हैं फॉर देयर सिक्योरिटी, बट येस, इंडिया फोकसेस ऑन दैट देयर शुड नॉट बी एनी आर्म्स रेस. फाइन. देन इंडिया बिलीव्स ऑन, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का जो मेन फोकस एक और ये भी है, दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए. नाउ व्हाट इज दैट? इंडिया बिलीव्स that in this 21st century, okay, we are living in 21st century, and this United Nations Security Council में जो members है, 5 permanent members are there and 10 non-permanent members are there. Okay, India believes that दो जो 5 permanent members है and जो 10 non-permanent members है, जो वो basically World War II के बाद हमने create किया था, and that does not reflect the वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ 21st सेंचुरी. ओके, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 के बाद जो हमारे वर्ल्ड में जो पावर पॉलिटिक्स जो थे, जिस तरीके से उस टाइम पे हमारा वर्ल्ड ऑर्डर जो था, इफ वी डू द कंपैरिजन विद द टुडेज टाइम पीरियड, ना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है. सो इंडिया बिलीव्स दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, एंड बहुत बार इंडिया जो है इस चीज़ को रेस करता है. फाइन, दैट इज रिफॉर्म इन द सेंस व्हाट दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और मेंबर्स को ऐड करने की जरूरत है, दैट शुड बी एक्सपैंडेड. सो ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर दैट. एंड देन इंडिया बिलीव्स दैट
वर्ल्ड में ना ऐसा नहीं होना चाहिए दैट देयर शुड बी ओनली टू सुपर पावर्स और वन सुपर पावर. इंडिया बिलीव दैट इट वर्ल्ड ऑर्डर शुड बी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज पावरफुल होने चाहिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन दे शुड बी पावरफुल. ओके, सो बेसिकली द पावर शुड बी शेयर्ड. फाइन, किसी एक तरफा बहुत ज़्यादा अलाइंड नहीं होना चाहिए. इट बिलीव्स दैट दैट विल एक्ट एज अ बैलेंस एंड दैट विल मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. So multipolar world order, India supports that thing. Fine. So ये कुछ था about the basic about India's foreign policy. Now let's look at the principles of India's foreign policy. Now one by one जो इंडिया की foreign policy के principles है वो हम discuss करेंगे. Now first principle is that is the promotion of world peace, anti-colonialism, anti-racialism, non-alignment को follow करना, African Asian unity को promote करना, and of course Panchsheel. Okay, so there are various principles are there. I've just taken the few important principles. Now let's discuss in detail about each one of them. Now the first one, promotion of world peace. Now see, India का जो foreign policy है उसका main motive क्या है? That is international peace and stability को maintain करना. Fine. Now this thing we can see in our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है विच वी कॉल इट DPSP. फाइन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर बेसिकली गाइडलाइंस विच द स्टेट that is the government they have to follow whenever they formulate any policies or whenever they make any laws. They are basically set of guidelines. It's basically a moral obligation where the state government have to follow it. Fine. सो DPSP जो है आर्टिकल 36 से 51 तक वो सारे गाइडलाइंस यहाँ पर मैंशनड है. ओके, नाउ आउट ऑफ दिस आर्टिकल 36 टू 51 आर्टिकल, ओके, इन दैट दिस वन इज मैंशनड दैट इज कि DPSP का पार्ट है कि वर्ल्ड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना इंडिया को इसलिए भी फॉलो करना है दैट इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ DPSP. फाइन. सो यहाँ पर हमें ये शो होता है कि दैट इंडिया कितना ज़्यादा इस चीज़ को भी बिलीव करते दैट फॉलोज दिस थिंग दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, दैट उसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वहाँ तक मैंशनड है. ओके, नाउ यू कैन सी दैट एग्जैक्ट लाइनिंग्स दैट इज मैंशनड अंडर दिस आर्टिकल. यहाँ पर 4 पॉइंट्स है. सी हियर द फर्स्ट थिंग इज दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना. ओके, एंड देन कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं दैट शुड बी ऑनरेबल, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. ओके, एंड इंटरनेशनल जो भी लॉज है, ट्रीटीज, ऑब्लिगेशंस, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. फाइन. एंड कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल बिटवीन एनी टू कंट्रीज, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक आर्बिट्रेशन दैट इज मीडिएटिंग रोल प्ले करके एक मीडिएशन के साथ उसके सॉल्व करना होगा. ओके, सो दिस इज अ थिंग दैट इज एक्चुअली मेंशन्ड इन दी DPSP ऑफ आर्टिकल 51. Now, second thing is that anti-colonialism. Okay, India was totally against the colonialism. Okay, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत स्ट्रांगली इसे एम्फसाइज किया था, अपने आवाज़ को रेज किया था दैट इंडिया इज अगेंस्ट द colonialism. Okay, so यहाँ पर देखो now why India follows this. क्यों against this colonialism? The first, India believes that colonialism and imperialism. Now, what is the difference between colonialism and imperialism? See here, I just made this 2 places. You can see here, this is A, this is B. Now see, colonialism means what? Basically, एक powerful country, दूसरे country, एक country A है, okay? And powerful country, let's take UK, okay? Britain ने इंडिया में रूल किया था, let's take that thing. United Kingdom is a powerful country और उसने एक country A के ऊपर रूल किया, country A को control किया. Now, colonialism means what? That this powerful country is actually controlling the country A. Now उसके सारे रिसोर्स को कंट्रोल करें ताकि उस वहाँ पर जो भी रिसोर्स उसको इकोनॉमिकली उसे बेनिफिट हो, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर देना. ओके, और मेन मोटिव क्या है? वहाँ पर इकोनॉमिकली वहाँ एक्सप्लॉइट करना, रिसोर्स वगैरह को अपने कंट्री में ज़्यादा बेनिफिशियल यूज़ करना. सो दैट इज़ अ थिंग. फाइन. धीरे धीरे इसकी डेफिनेशन में काफ़ी चेंजेस हुए थे. तो मेन डिफरेंस आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. इंपीरियलिज्म मीन्स व्हाट? Imperialism means basically जो एक पावरफुल कंट्री, फॉर एग्जाम्पल सी हियर दिस B कंट्री, वो उसको कंट्रोल कर रहा है. ओके, वहाँ पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर सेंस में उसको कंट्रोल कर रहा है. एंड बेसिकली दैट पावरफुल कंट्री वांट टू एक्सपैंड इट एम्पायर, कि अपने वो
एम्पायर को और एक्सपैंड करना चाहते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ को अपने डिफरेंट कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल करके. फाइन. सो दिस इज अबाउट द बेसिक डिफरेंस आई मेंशन हियर. सो इंडिया में क्या था, ब्रिटेन ने पहले अपनी कॉलोनीज बनाई थी, कोलोनियलिज्म एस्टैब्लिश हुआ, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे expanded the empire over here. तो बेसिकली imperialism भी वहाँ पर हो गया. ओके, सो दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई. नाउ इंडिया बिलीव्स दैट ये जो कोलोनियलिज्म है ना, एंटी imperialism एंड ऑल, इससे एक जो बेसिकली जो वीकर कंट्रीज है उसी के ऊपर पावरफुल कंट्रीज रूल कर रहे, तो इससे उस कंट्री की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है, एंड दैट इज समथिंग नॉट एट ऑल गुड फॉर द वर्ल्ड. इससे वर्ल्ड में पीस भी मेंटेन नहीं होता. Okay, and they basically India supports this decolonization process, and India is also against racialism. You remember that South Africa में apartheid system था, where the white minority group, they actually made that apartheid system जहाँ पर black के साथ discrimination होती थी, तो उससे भी सोसाइटी में inequality promote होता है, and through this also वर्ल्ड में पीस मेंटेन नहीं होता. ओके, एंड देन इंडिया बिलीव्स दैट वी शुड फॉलो द नॉन अलाइनमेंट. ओके, इंडिया ने बहुत ज़्यादा अर्ज किया था डेवलपिंग कंट्रीज को दैट दे हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. इसको फॉलो करें. एंड यू ऑल रिमेंबर नॉन अलाइनमेंट मीन व्हाट, दैट कोल्ड वॉर के टाइम पे टू पावर ब्लॉक्स थे. वन लेड बाय द यूएसए, दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉक, another one led by the USSR, that was Eastern Bloc. So in basically ये जो two blocks जो create हुए थे, यहाँ पे किसी के साथ align नहीं होना, and they should remain neutral, and they should not be aligned with one superpower basically. Okay, now when we say that India is actually following the non-alignment policy, foreign policy और non-alignment policy को follow करता है, what does it mean? It means three things. Okay, the first thing is that इसका मतलब ये है कि इंडिया जो टू पावर ब्लॉक से, दैट इज द यूएसए लेड एंड यूएसएसआर, यूएसए का मिलिट्री ब्लॉक को मिलिट्री अलायंस क्या है, दैट इज नाटो, एंड यूएसएसआर का वार्सा पैक्ट. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि इंडिया ये जो मिलिट्री अलायंस है, NATO led by USA and Warsaw Pact led by USSR, India will not be part of any military alliance. First thing. Second one is that कि since India independent like non-aligned होगा, तो it will not international level पे कुछ भी events होते तो it will do that, it present its views, opinions independently. Okay, उसे किसी तरह align होने की ज़रूरत नहीं है. So it can present its independent approach. Fine, independent views on any matter. And third thing is that it can maintain friendly relation with all the countries. अगर two power blocks से USA and USSR led, ठीक है, and then इन दोनों के साथ वो friendly relation maintain कर सकते हैं, और भी different countries के साथ उसे किसी तरह align होने की ज़रूरत नहीं है. So these three things are possible when India follow the non-alignment policy in its foreign policy. Fine, I hope this one clear. Now the next is Afro-Asian unity. Now see, when during the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru जो Prime Minister थे, the first Prime Minister, okay, at that time period, during this 1940s I'm talking, he believed that India is so vast and vibrant, in terms of its culture, in terms of its historical, डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग. बेसिकली इंडिया इतना बड़ा कंट्री है जो बहुत इन टर्म्स ऑफ लार्ज साइज में, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. सो नेहरू बिलीव्ड दैट इंडिया शुड प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन द इंटरनेशनल अफेयर्स. ओके, वर्ल्ड अफेयर्स में इंडिया को मेजर रोल प्ले करना चाहिए. एंड ऑफकोर्स एशिया में, अफ्रीका, इस एशियन रीजन में, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, तो यहाँ पर तो उसे स्ट्रांगली और अच्छे से रोल प्ले करना चाहिए. ना कुछ ऐसे इवेंट्स जो उस टाइम पे हुए थे 1940s और 50s के टाइम पे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था नेहरू जी ने, और उस टाइम पे जो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे दैट एक्चुअली हाईलाइट्स दिस. नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट he believed that India should be the voice of this, अफ्रीका और एशिया के यहाँ जो भी कंट्रीज है, इन सबका आवाज़ बनना चाहिए, और स्ट्रांगली इंटरनेशनल बॉडीज में अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी ऑल दोस इवेंट्स जिससे हमें ये प्रूव होता है. दैट इज 1947 एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1947. ओके, और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, दिस वाज द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली
बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ओके, और इस कॉन्फ्रेंस में जो मेजर लीडर्स एशिया को उन्होंने ज्वाइन किया था, एंड दिस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली कंसिडर एज द फर्स्ट अटेम्प्ट, कि पहली बार ऐसा अटेम्प्ट किया गया था कि एशिया के यूनिटी को बढ़ाना है। ओके, यहाँ पर सिंस एशिया के बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आए थे इंपॉर्टेंट, तो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द एशियन यूनिटी। फाइन। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या था? सिंपल, जो भी वहाँ पे एशिया के लोग हैं, मेन वुमेन, सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, एंड दे शुड डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। ओके, दैट वी शुड नीड टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स इन द एरियाज लाइक सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, उन सारे प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना चाहिए, सोल्यूशंस कॉमनली फाइंड करना चाहिए। फाइन, सो दिस वॉज द मेन थिंग ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। एंड देन 1949 में क्या हुआ था? 1949 में basically that what India done, India basically brought together the Asian countries on the burning issues of Indonesian freedom. Okay, so 49 में इंडोनेशिया को like डच से फ्रीडम वहाँ पर स्ट्रगल चल रहा था, तो उनसे फ्रीडम लाइक दे वर आस्किंग फॉर द फ्रीडम फ्रॉम डच। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इस इश्यू को इंटरनेशनली रेज किया था और इंटरनेशनल सपोर्ट को गैदर किया था फॉर दी Indonesia. Okay, so here you can see India is actually playing a very strong role. And then 1955 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम कहते हैं बैंडिंग कॉन्फ्रेंस, एंड बैंडिंग इज बेसिकली अ प्लेस इन इंडोनेशिया। एंड यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस जो था दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑफ कोर्स इंडिया एज वेल। इन सारे कंट्रीज ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फ्रेंस यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी एशिया और अफ्रीका में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो उस टाइम पे इमर्ज हुई थी, बेसिकली जो डीकोलोनाइज होकर जो न्यू कंट्रीज, इंडिपेंडेंट कंट्रीज इमर्ज हुए थे, दे ऑल बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। एंड यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम ये था दैट अफ्रीका और एशिया का इकोनॉमिक कल्चरल कॉपरेशंस को प्रमोट करना एंड कोलोनिज्म के अगेंस्ट अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करना, अपनी आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल पे रेज करना। ओके, सो दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस वन। और यहाँ से ही कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आया था दैट नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो दैट कॉन्सेप्ट समवेयर और द अदर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस बैंडिंग कॉन्फ्रेंस, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। फाइन। एंड उसके बाद फिर नाम एस्टैब्लिश हुआ था इन यूगोस्लेविया विद द मीटिंग्स ऑफ 5 फाउंडिंग मेंबर्स दैट वी हैव डिस्कस इन दैट प्रीवियस इन द पार्ट ए बुक, एंड जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी एक फाउंडिंग मेंबर थे। एंड द फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड in September 1961. Okay, now next is Panchsheel principle. See, Panchsheel is basically 5 principles. Okay, so this was signed between India and China on 29th April 1954, and of course main motive क्या था? अपने relation जो है इंडिया और चाइना के बीच में बहुत strengthen करना, and for that reason this was signed. And who was the prime minister? Prime Minister of India जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के जो प्रीमियर जो थे, प्रीमियर काइंड ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, ज़ू एनलाई, तो इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ था। ओके, नाउ व्हाट आर दोस 5 प्रिंसिपल्स? नाउ द फर्स्ट वन इज दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, कि दोनों कंट्रीज आपस में म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे। जो उस कंट्री के, इंडिया जैसे अपने बॉर्डर को उसके बीच इंटरनल मैटर्स में इंडिया के जो बॉर्डर्स है उसको वो रिस्पेक्ट करें, वो इंडिया के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करें, इंटरफेयर ना करें इंटरनल मैटर्स में। एंड सेम वे दैट चाइना के जो लैंड, जो टेरिटरी है, उसकी यूनिटी है, उसको वो रिस्पेक्ट करें इंडिया, और उसकी सॉवरेनिटी को हर्ट ना करें। फाइन। एंड म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, की दोनों ही कंट्री एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, एंड नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स, एंड इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, पीसफुल को एक्सिस्टेंस। सो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के, जिन बेसिस पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954. ओके, नाउ सी इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ सी इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट जो था वो बेसिकली सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था कि ओके ओनली वी वर द पीपल हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हु वर अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म। नो, इंटरनेशनल लेवल पे अफ्रीका, दिस एशिया में जो डिफरेंट जो कंट्रीज कॉलोनीज थे किसी सुपर पावर के अंडर में, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें चल रही थी। तो दिस वाज इंटरनेशनल स्ट्रगल, वर्ल्ड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। एंड बिफोर इंडिपेंडेंट इटसेल्फ हमारे इंडियन बहुत सारे नेशनल लीडर्स जो है उनके साथ वर्ल्ड में काफ़ी जहाँ पर भी स्ट्रगल था उनके साथ कनेक्शंस थे। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है दैट वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दैट वाज नॉट जस्ट टेकिंग प्लेस इन इंडिया। ओके, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो इवेंट्स थे। एंड एट दैट टाइम
हमारे जो नेशनल लीडर जो थे वर्ल्ड में जहाँ पर भी स्ट्रगल होते हैं, दे ऑल यूनाइटेड टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म एंड दिस इंपीरियलिज्म. ओके, एंड दे वांटेड दैट दिस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड में ये सारे सिस्टम नहीं होना चाहिए. फाइन. अच्छा, एक चीज़ है नोटिस करना यहाँ पर, इंडियन नेशनल आर्मी. This was the first Indian National Army, was established by Netaji Subhash Chandra Bose during the World War II. That was in 1942. Okay, so 1942 में this Indian National Army को establish किया था by Subhash Chandra Bose. Okay, and see, इस National Army को जो establish किया था सिंगापुर में establish किया था, and what is the main aim of this one is that this National Army was against the Britishers. Okay, वो independence चाहते थे. And what I'm trying to say, mention here is that this Indian National Army, INA, this thing shows that this was the, here shows that कि Indian जो हमारे linkage that established between India and overseas Indians during the freedom struggle. Okay, देखो, Indian National Army जो है that was actually established in Singapore, मैंने बताया था. तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे, that was the World War II is actually was going on at that particular time period. तो 42 में ब्रिटेन, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था, ब्रिटेन वॉज with the allied powers group. दो ग्रुप्स थे, allied powers, and जापान was with the axis powers group. जापान, जर्मनी वो एक तरफ आते हैं, उसमें और भी बहुत सारे कंट्रीज थे. तो यहाँ पर क्या था, जापान ने बहुत सारे जो प्रिजनर्स, जो सोल्जर जो थे यूके के, उनको कैप्चर कर लिया था वॉर के टाइम पे. एंड ऑफकोर्स यूके में जो यूके की तरफ से जो प्रिजनर्स जो थे, डेफिनेटली इंडिया जो थी कॉलोनी थी, तो इंडियन प्रिजनर्स भी बहुत थे. ओके, तो इंडियन प्रिजनर कह रही हूँ, इंडियन सोल्जर्स भी काफ़ी थे उसमें पार्ट, एंड उनको कैप्चर कर लिया था वॉर के टाइम पे. एंड उनको फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर वहाँ पर जापान ने कंट्रोल कर लिया था. दैट वॉर के टाइम पे जब किसी भी कंट्री, किसी दूसरे ग्रुप को सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं, तो दे विल बी कॉल्ड लाइक प्रिजनर्स ऑफ वॉर. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर होता है, जो पहले 1962 में भी हुआ था, तो उसमें जो इंडियन सोल्जर्स को जो चाइना ने पकड़ लिया था, तो वो उनको हम कहेंगे दैट दे विल बी प्रिजनर्स ऑफ वॉर. एंड सेम वे जो इंडिया ने चाइनीज सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं, तो वो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहलाए जाते हैं. ओके, सो इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो जापान ने कंट्रोल कर लिया था, उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के थ्रू इस INA को इस्टेब्लिश किया था. ओके, सो जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे, अराउंड 45,000 समथिंग, 45,000, हाँ अराउंड इतने ही थे. सो उनके थ्रू बेसिकली ये INA को इस्टेब्लिश किया था, दैट इंडियन नेशनल आर्मी को इस्टेब्लिश किया था. नाउ सी व्हाई जापान विल सपोर्ट फॉर दिस क्रिएशन ऑफ दिस इंडियन नेशनल आर्मी विद द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बिकॉज उनको फ़ायदा होगा. बट बिकॉज ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, दे वर एक्चुअली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. वॉर में अगर ये इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिश के अगेंस्ट होगी, तो जापान के लिए तो फ़ायदा ही है वर्ल्ड वॉर 2 में. फाइन. सो दैट वॉज अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट दिस वन. एंड what this Indian National Army creation shows, that it shows that there was a linkage established between India and overseas Indians during the freedom struggle. कि इंडिया और बाहर के जो हमारे इंडियंस जो थे, that is prisoners of war, okay, उनके साथ जो एक क्लियर लिंकेज था, एक कनेक्शन था during this freedom struggle. Okay, I hope this one clear to all of you. Nehru's role in India's foreign policy. See, Jawaharlal Nehru played a very important role in shaping India's foreign policy. Being the first Prime Minister of India, and along with that Foreign Minister, he played a very important role in formulation and implementation. कि हमारी foreign policy किस तरीके से formulate होना चाहिए, उसको किस तरीके से implement करना चाहिए. From the time period from 1946 to 1964, he played a very important role. Now let's see. Now, first of all, 3 objectives of Nehru's foreign policy. Again, what was the Nehru's role in shaping India's foreign policy? If you get a question like this, so you can write all these points, whatever we are going to discuss now. Very, very important topic, evergreen topic. Okay, so go through this topic very well. Now, let's see the 3 objectives of Nehru's foreign policy. The first 2 objectives that preserve the hard-earned sovereignty. जो हमारी sovereignty, जो Britishers we are getting that after independence, we are getting that sovereignty back. Okay, जो हमारी hard-earned sovereignty जो है, जो supremacy हमारी government की, that should be maintained, that should be preserved.
एंड हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करना होगा, दैट इज हमारे टेरिटोरियल यूनिटी को हमें प्रोटेक्ट करना होगा, एंड ऑफ कोर्स प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से में प्रमोट करना है. ओके, सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी. फाइन, नाउ लेट्स सी उनके लाइक मेथड्स क्या थे, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड. ऑफ कोर्स you all know it very well, he was the founding member of creation of this non-alignment movement. So he followed the strategy of non-alignment, although in India at that time when he supported non-alignment, there were some people who were against this non-alignment. वो चाहते थे कि हमें non-alignment नहीं follow करना चाहिए, we should be aligned towards USA because USA is pro-democratic country. Okay, democracy को promote करता है, तो उसके तरफ हमें aligned होना चाहिए. Fine. Now, who are the people who were who said that we should be aligned towards USA? That was Dr. Ambedkar. Then some political parties, ऐसे जो political parties थे जो कम्युनिज्म को अपोज करते थे. कम्युनिज्म किसका? USSR का आइडियोलॉजी है, तो जो भी उसको अपोज करते थे तो वो जो ऐसे political parties है वो USA की तरफ जाते थे कि वो we should be aligned towards USA. ठीक है, all those parties. Then भारतीय जनसंघ, जिसका like उसी के थ्रू बाद में later on then जनता पार्टी केम, देन बीजेपी पार्टी केम. ओके, देन स्वतंत्र पार्टी. फाइन, सो ये सारे लोग थे हु वांटेड दैट वी शुड बी अलाइन टूवर्ड्स यूएसए. आई होप दिस वन क्लियर. नाउ फर्दर, अब नेहरू के और भी क्या लाइक उनके व्यूज थे ऑन दिस फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. He said that India should play a greater role in world matters, especially in Asia, as we have discussed, and he strongly advocated for एशियन यूनिटी. ओके, एशिया की यूनिटी होनी चाहिए, वो स्ट्रांगली उसे सपोर्ट करते थे. एंड ही सेड दैट फॉर दैट इंडिया शुड प्ले अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल. सो इन नेहरूज रोल इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, you can write all those these points as well because these things are actually connected with that only. फाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन सारे पॉइंट्स को उसमें कवर कर सकते हो. 1947 एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, देन इंडोनेशिया's फ्रीडम 1949, then Bandung conference. So you can cover all those things in Nehru's role, okay, to make your answer more effective, according to the marks. Fine. And then he believed that उसके जो time period जो था, his era, he made a greater contact with Asian and African countries. को बहुत सारे countries का एशिया का अफ्रीका का अपने relations बहुत अच्छे से like contact किया. तो that was actually in his time period that was done very well. Okay, now so ये था about Nehru's role. Okay, now let's discuss about this one, distance from two blocks. See, जब हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, व्हाट वाज दैट मेन एम? ऑफ कोर्स दैट वाज हमें दोनों तरफ अलाइन नहीं होना है. नेहरू स्ट्रांगली सेड दैट वी शुड नॉट बी अलाइन टुवर्ड्स एनी ऑफ द टू सुपर पावर्स. हमें अलाइन नहीं होना चाहिए. वी शुड बी इंडिपेंडेंट इन आवर फॉरेन पॉलिसी. फाइन, इंडिपेंडेंटली हमें डिसाइड डिस्टेंस लेना होगा. नाउ व्हाई दैट वाज डन? उससे ये मेन मोटिव ये था कि दैट टू प्रिजर्व वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, दैट शुड बी डन विद द नॉन अलाइनमेंट. और कोल्ड वॉर के जो टेंशन है उसे रिड्यूस करना होगा. फाइन, एंड इंडिया बिलीव दैट वर्ल्ड पीस को हम इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, फर्स्ट बाय नॉन अलाइनमेंट, बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस, एंड देन बाय कंट्रीब्यूटिंग सोल्जर्स टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन. की जो भी यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशन है वहाँ पर सोल्जर्स को कंट्रीब्यूट करना है. दैट्स वाई इवन इफ यू सी इंडिया इन दिस यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इंडिया बहुत ज़्यादा सोल्जर्स को वहाँ पर फोर्स ऑपरेशन के लिए वहाँ पर सेंड करता है. ओके, एंड in reducing cold war, if we talk about, you remember in that previous book we have discussed that in Korean war, North Korea और South Korea के बीच में जब war हुआ था, India actually played a very important mediating role in that war, and it tried to solve this war tension को like reduce करने के लिए बहुत important role play किया था. to the South African soldiers के लिए बहुत ज़्यादा medical supports भी provide किया था. so that thing you can see here that India believes in promoting the peace the international level. For promoting peace, these three things actually India believe that we should continue. Okay, now and then of course very important, हमें कोई भी मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना. यूएसए लेड नाटो एंड वार्सा पैक्ट लेड बाय यूएसएसआर. ओके, अच्छा देखो इंडिया का नॉन अलाइनमेंट जो सिस्टम है, दैट हाउ मच इट वाज सक्सेसफुल, वेदर इंडिया वाज एबल टू मैनेज दैट बैलेंस in that or not, that's a question mark over here. You can see उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. 1956 में 2 इवेंट्स हुए थे. ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट सुएज कैनाल इशू था. सुएज क्राइसिस कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू विल स्टडी इन सीनियर लाइक इन कॉलेज लेवल, यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट सुएज क्राइसिस.
सो यहाँ पर ब्रिटेन ने बेसिकली यहाँ पर सुएज कैनाल इशू के ऊपर इजिप्ट को अटैक किया था. ओके, नॉट जस्ट ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, 3 कंट्रीज ने मिलकर अटैक किया था. इट वाज अ ट्राइपार्टाइट अटैक. ओके, एंड इंडिया एक्चुअली यू नो व्हाट इट डन, इंडिया वाज अगेंस्ट ब्रिटेन. इंडिया ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया था कि दैट दिस इज नॉट अ गुड थिंग. इंडिपेंडेंटली इंडिया ने अपने ओपिनियन को प्रेजेंट किया था, दिस इज समथिंग वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स अ न्यू वे ऑफ कॉलोनियल इन्वेजन. वो जो कॉलोनियल जिस तरीके से इन्वेजन पहले करते थे, दैट थिंग इज ओवर. उस टाइम पे मिलिट्री के स्ट्रेंथ के थ्रू हम करते हैं. यहाँ पर बेसिकली क्या है कि न्यू तरीके का कॉलोनियल इन्वेजन हो रहा है. ओके, सो इंडिया वाज टोटली अगेंस्ट दिस. एंड सेम ईयर 1956 में ही यूएसएसआर ने इन्वेड किया था हंगरी कंट्री को. हंगरी वाज एक्चुअली इट बिकेम यू नो सैटेलाइट स्टेट ऑफ यूएसएसआर आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. तो वहाँ पर एक पपेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया हुआ था यूएसएसआर का. तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट लाइक रेवोल्यूशंस हो रहे थे, एंड यूएसएसआर ने इन्वेड करके बहुत स्ट्रांगली उसको क्रश कर दिया था उन रेवोल्यूशंस को. एंड इन दैट सिचुएशन इंडिया ने कोई उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला. ओके, सो यू नो इट दिस शोज समवेयर और द अदर कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं है. फाइन, तो इंडिया को यहाँ पर भी बोलना चाहिए था, बट येस दैट वाज नॉट डन. नाउ लेट मी शो यू द सुएज कैनाल. नाउ यू कैन सी हियर सुएज क्राइसिस का यहाँ फोटो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है. दिस इज द मैप ऑफ इजिप्ट. ओके, यहाँ जो इजिप्ट का मैप है, दिस कवर्स ऑल दिस फुल रीजन. फाइन, ये फुल इजिप्ट का मैप है. एंड यहाँ पर देखना ओवर हियर, दिस इज सुएज कैनाल. ओके, सो दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल कैनाल. ओके, आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया गया था इन ऑर्डर टू जॉइन दिस मेडिटेरेनियन कनेक्टिविटी को बेसिकली एस्टैब्लिश करना था थ्रू दिस मेडिटेरियन सी को यहाँ पर रेड सी के अंदर एस्टैब्लिश करना था, सो दैट यू नो ट्रेड वगैरह करने में बहुत शॉर्ट रूट है. अदरवाइज ब्रिटिशर्स यूज टू क्रॉस दैट अफ्रीकन रीजन. ओके, नाउ लेट मी शो यू दिस सुएज कैनाल इन अनदर मैप. You can see here the Suez Canal map. Let me zoom in. Just see here the location. See, this is over here. यहाँ पर Egypt. Okay. And in this location, you can see here, this is Suez Canal. यहाँ पर जो लैंड मास है over here, एक artificial channel यहाँ पर establish किया हुआ है for the for the movement of ships from here for trade purpose. Let me zoom in. You can see this canal size. See here. Starting from this way. Okay. Now see. This is the like canal way you can see. You can see here the ship is also over here there. And then it's a two way. Okay, यहाँ पर दोनों ways है. Like जाने का भी है, यहाँ पर आने का भी है. फाइन, और बीच में देखो यहाँ पर एक स्मॉल लेक, ग्रेट ब्रिटर एक लेक भी है. जस्ट सी हियर, यहाँ पर देखो, दिस इज वन वे, ये दूसरा जाने का वे. ओके, आई होप द मैप लोकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमने slowly and gradually we joined over here Mediterranean Sea. Okay, so this was something very very good for the economic perspective, and this is basically nearly around 193 किलोमीटर इसका लेंथ है. ओके, देखो सुएज कैनाल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, जस्ट नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. नाउ सी, ये जो कैनाल है ना, यहाँ पर ये जो कैनाल इस्टेब्लिश किया, जो अभी मैंने जो मैप में आपको दिखाया था, दिस कैनाल वॉज एक्चुअली established by the Suez Canal Company. Okay, और इसको इस कंपनी ने इसको बनाया था इन 1959 से 1969 तक, 10 साल लगे थे उसको बनाने में. एंड दैट कंपनी, सुएज कैनाल कंपनी, उस कंपनी में बेसिकली जो शेयर जो है कंपनी में, वो काफ़ी डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज अपने शेयर्स वगैरह खरीदते हैं. तो इस कंपनी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल, तो इसमें बहुत सारे कंपनी ने अपने पैसे लगाए थे. तो इस कंपनी में ज़्यादा जो शेयर जो है दैट वाज ओन्ड बाय फ्रांस. ओके, एंड लेटर ऑन इजिप्ट का भी शेयर था इसमें. तो वहाँ के जो रूलर जो थे, उन्होंने वो शेयर्स को ब्रिटेन को बेच दिया था बाद में, कुछ बिकॉज ऑफ बैंकरप्सी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड ऑल. एंड दैट लेड टू कि ब्रिटेन के पास भी अब इस कैनाल के जो शेयर्स है वो आ चुके हैं. ओके, तो इट्स अ कंपनी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी. फाइन, नाउ व्हाट हैपेंड, 1956 में ये हुआ था कि इस कंपनी को इजिप्ट की गवर्नमेंट ने, बिकॉज यू हैव सीन दैट इट्स इजिप्ट के लैंड से जा रहा है. ओके, सो यहाँ पर इजिप्ट ने क्या किया, इसको नेशनलाइज कर दिया. जैसे इंदिरा गांधी जी ने
अपने रूल के टाइम पर उन्होंने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था. ओके, नाउ what it means that basically इजिप्ट गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये जो सुएज कैनाल जो अभी ये जो कंपनी कंट्रोल कर रही थी, नाउ इट विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट विल कंट्रोल ऑन दिस. फाइन. नाउ इसको जब नेशनलाइज किया था इजिप्ट के जो रूलर जो थे अब्दुल नसर, आई गेस अब्दुल नसर, दैट पर्सन जब उन्होंने इसको नेशनलाइज किया था, एंड दैट एक्चुअली that was this UK was not in favor of that, and then UK, France, and with the help of Israel. Okay, now why Israel? Because Israel जो है यहाँ पर एक ऐसा country है which is actually not an Arab part of Arab world. Okay, तो basically वहाँ पर Jewish speaking peoples are there. That is not just actually like part of this Arab speaking people, Arab world के. तो वहाँ यहाँ पर उसके बहुत सारे enemies हैं. तो इन तीनों countries ने मिलके यहाँ पर सुएज कैनाल इजिप्ट को इन्वेड किया था, एंड दैट लेड टू दिस क्राइसिस. ओके, एंड ऑल्दो बाद में UN, USSR और USA के प्रेशर से उसको लाइक इन तीनों कंट्रीज ने विदड्रॉ कर लिया था, एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट. इसके बाद UK का जो इमेज जो था, ओके, दैट वाज एक्चुअली a bad thing for UK. Basically उसका image जो था that went down, that how can UK do like this. It was internal matter of the Egypt. वो अपने country में कुछ चीज़ को अगर किसी किसी भी इंडस्ट्री को या कोई कंपनी को नेशनलाइज करते तो या किसी भी रीजन को, तो इट्स देयर इंटरनल मैटर, एंड ऑफ कोर्स दे पेड फॉर दैट. कंपनी जिसके भी शेयर जो भी थे, तो दे पेड दैट मच अमाउंट टू ऑल दोज रिस्पेक्टिव कंपनीज जिनके जितने शेयर्स थे. फाइन. सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट that took place in 1956, and this event India actually condemned the UK's activity, but yes, when USSR attacked Hungary, India ने उसको कुछ नहीं कहा. That was something very following the non-alignment policy. ये शो करता है कि somewhere or the other थोड़ा balance नहीं है. Now अब उसके बाद later on what happened with the same time period, India actually focused on spreading the non-alignment policy. Okay, तो इंडिया ये चाहता था कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज को अर्ज करते थे that they should follow this non-alignment policy and all. But yes, what Pakistan done, it joined alliance, joined the USA-led military alliance. Fine. And अब मैं वो डिस्कस कर रही हूँ बेसिकली इंडिया और USA का रिलेशन के बारे में. ओके, सो USA was not happy with India. ओके, इंडिया के साथ उसका जो रिलेशन जो था वो इतना अच्छा नहीं था, इतना बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं था. ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज इंडिया का नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी USA वॉज नॉट लाइक फॉर दैट, एंड इंडिया का जो इंडिपेंडेंटली इस तरीके से नॉन अलाइन फॉलो करना, तो USA के बेसिकली वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन. फाइन. एंड काफ़ी ज़्यादा टेंशन था इंडिया और USA के रिलेशन ड्यूरिंग 1950s. ओके, एंड इंडिया का यू रिमेंबर दैट इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद USSR 1971 में ड्यूरिंग दैट बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. Prime Minister of India at that time, Indira Gandhi, she, what she done? She signed that friendship treaty for 20 years with USSR. Okay, so वो जो साइन हमने किया था, देखो उसको साइन इसलिए भी किया था बिकॉज बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए मिलिट्री वगैरह असिस्टेंस इंडिया को ज़रूरत थी उस वॉर, उस 1971 के वॉर में. फाइन. एंड वन मोर रीज़न इज़ दैट पाकिस्तान एंड USA का काफ़ी क्लोज रिलेशन था, एंड पाकिस्तान चाइना का क्लोज रिलेशन भी था, एंड ऑल दीज थ्री कंट्रीज वर दैट वेरी क्लोज टू ईच अदर दैट टाइम. ओके, पाकिस्तान was close to USA and China was close to Pakistan. तो लाइक अगर बहुत ज़्यादा इन लोगों की सपोर्ट अगर मिल जाता है पाकिस्तान को, USA का सपोर्ट भी, चाइना का सपोर्ट भी, तो 1971 वॉर में कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमेटिक होता. तो बट येस, बाय साइनिंग दैट फ्रेंडशिप ट्रीटी विद USSR वी मैनेज दैट सिचुएशन. ओके, एंड और एक और रीज़न क्या है इंडिया का USA का रिलेशन ज़्यादा अच्छा ना होने उस टाइम के, दैट वाज इंडिया फॉलोड दैट्स प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल. एंड इसमें बेसिकली क्या था दैट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, एंड ऑफ कोर्स इम्पोर्ट जो भी सामान बाहर से इम्पोर्ट होते थे उसमें के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगती थी. तो बिकॉज USA इज़ दैट कैपिटलिस्ट कंट्री, इट बिलीव्स दैट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन शुड बी लेस, और वहाँ पर काफ़ी फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. बट येस, हमारे इकोनॉमिक मॉडल थोड़ा वैसा नहीं था. वी डन दैट थिंग अराउंड 1991 लिबरलाइजेशन के साथ हमने किया था. बट येस, इन सारे रीजन से इंडिया का और USA का रिलेशन जो था दैट वॉज नॉट favorable at that time. Okay, so I hope this part is clear to all of you, and part 2 will discuss about India and China. Thank you for watching this video.